Okay, let us start with the first question. In this question, diagram is not given. So first of all, we have to draw the diagram by reading the question again. So it says that there is a ladder. तो जहाँ पर भी ladder आ गया तो हम लोग ladder बना देते पहले. ठीक है, let us say this is point A and this is point B. अब क्वेश्चन में दिया है a 12 meter ladder. The total length of this ladder is 12 meter, making angle 30 degrees with the wall. Again important point, with the wall. एग्जाम में लोग क्या करते हैं, नॉर्मली आदत है कि नीचे ग्राउंड से 30 बता देंगे. यहाँ पर वैसे नहीं है. यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि द एंगल इज 30 डिग्री विथ द वॉल, मतलब यहाँ से आपको 30 डिग्री दिया है विथ द वॉल. ओके, देन स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड द लैडर इज 0.3 एंड सो ऑन. अ मैन इज देयर, अ मैन असेंड्स द लैडर. अब एक आदमी जो है सीढ़ी पे चढ़ रहा है. हमको यही पूछा है कि वो कितना आगे तक जाएगा सच दैट द लैडर विल स्लिप. So let us say we will draw a free body diagram first and then we will start with the procedure. Now interventions from your side. Let us start with the free body diagram. सबसे पहले क्या बनाएंगे? First of all we show all the applied forces. इसके अंदर अभी कोई applied force नहीं है तो उसको भूल जाओ. Second thing we show is the self weight, and we know that self weight always act vertically downwards and at the center of the body. So the total length of this ladder is 12 meters. So I will make one force or a load of vertically downward direction with the value of how much, the ladder is 100, 800. So this is 800 Newton. Okay, exactly at the center. That means this is 6 meters and this is also 6 meters. Applied force हो गया, self weight हो गया. Now another weight, एक और weight है क्वेश्चन में. क्या है वो? मैन का वेट दिया है। यस, एक मैन का वेट दिया है जिस जो दिया है हमको 600 न्यूटन. लेकिन वो कहाँ पर बनेगा ये हमको नहीं मालूम है. क्वेश्चन में हमको वही पूछा है कि वो आदमी कहाँ पर रहेगा. तो मैं कहीं पर भी अज्यूम कर लेता हूँ, अज्यूमिंग दैट मैन इज समवेयर हियर. ठीक है, मैंने अज्यूम कर लिया कि मैन कहीं तो यहाँ पर है. हुज वेट विल बी एक्टिंग अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन and the value of weight will be 600 Newton. Okay? And let us now assume that this distance where the man is from the ground is x. ठीक है, ये डिस्टेंस x से ये हम लोग अज्यूम कर लेते हैं. चलो, अप्लाइड लोड हो गया, सेल्फ वेट हो गया. नेक्स्ट वी शो द रिएक्शन फ्रॉम कॉन्टैक्ट सरफेसेस. नाउ दिस लैडर A has contact at point A. Surface is vertical, so reaction will be horizontal. So I will make one reaction like this. So it will be, let us say, HA. There is one more contact of this ladder at this point B. So I will make one reaction, let us say VB. Okay. Next, applied force हो गया, self weight हो गया, reaction from contact surface हो गया. Next point is friction force. Now, when you observe this figure, which is on the right hand side, when the ladder will try to slip, this point will go towards right side and this point will go towards downside. So because the motion of A is down, we will have friction force in the upward direction. So here I will make an upward force with a value. अब देखो यहाँ पर एग्जाम में ये भी थोड़ा एक मिस्टेक होता है, बच्चों से पढ़ते नहीं है क्वेश्चन बराबर. Here it is written friction between wall and ladder. Wall and ladder is 0.3, मतलब यहाँ पर का फ्रिक्शन 0.3 है. So this will be 0.3 HA. Similarly we are given that between ground and ladder is 0.25, मतलब यहाँ का फ्रिक्शन at point B. And as point B is moving right side, friction force will move left side, and the value will be 0.25 into VB. Okay, so we have now made all the forces which are acting on the ladder, that is applied force, self weight, reaction from contact surface and friction force. Now our diagram is ready to be applied for conditions of equilibrium. Now starting with the first condition, our first condition is summation of fx should be 0, adding all the forces in x direction. तो क्या क्या आ जाएगा, पहले तो एच ए जा रहा है राइट साइड, सो आई विल राइट एच ए पॉजिटिव माइनस 0.25 VB, और कोई फोर्स x में नहीं है. दिस शुड बी इक्वल टू 0 एंड लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1. सेकंड इक्वेशन, summation of Fy should be 0, adding all the forces in y direction. So if that I will see in the diagram, I will get 0.3 HA, then minus 600
minus 800 plus VB is equal to 0. Okay, let this be equation number. Now important thing and where the students make mistake in exam is equation number 3, wherein we take the moment. So let us say I will write now summation of moment at B is equal to 0. बहुत important thing. Now when we take moment we have to remember that we need to take which distance, कौन सा distance लेना है हमेशा हमको moment के टाइम पे? perpendicular distance. Yes, it should be always perpendicular distance. अगर फोर्स वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, अगर फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल डिस्टेंस. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद दैट. पॉइंट बी से हम लोग मूवमेंट ले रहे हैं, तो ये दोनों फोर्सेस 0.25 VB और VB ये दो का मूवमेंट हो गया 0. Now this 800 Newton force is making an anti-clockwise movement, so it will be positive. So I will write here 800 multiplied by. Now as our force is horizontal, okay, I will make the things. As our force is vertical, I need which distance? Horizontal. I would require horizontal distance. That means I require this particular distance. और इसका मैंने आप लोग को शॉर्टकट बता दिया था. When okay, observe the right side diagram. When this angle is 30, ये एंगल 90 है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? This will be 60 degrees. Correct? So now I will mark this here as 60. Now once the angle is known, अब आप लोग को शॉर्टकट पता है. अगर ये एंगल 60 है और हाइपोटेन्यूज ये यहाँ पर जो है वो 6 है, so this will become 6 cos 60. So I will multiply the distance and I will write here 6 cos 60. 6 cos 60. Then 600. This 600 Newton force is also again making an anti-clockwise movement. So I will write plus 600 multiplied by. Again my force is vertical, so I need the horizontal distance. Okay, so I will make the diagram like this. So this is now the distance which I am requiring, ये वाला. Okay, again this is 60, तो ये distance कितना हो जाएगा अभी? What will be this distance? 30. X cos 60. It will be x cos 60. क्यों x cos 60? Because यहाँ पर देखो हाइपोटेन्यूज हमको दिया है क्वेश्चन में x. हाइपोटेन्यूज x है, so it will be x, and because this component is here touching the angle, so this will be cos 60. So it is x cos 60. तो यहाँ पर आ जाएगा x cos 60. ये वाला फोर्स भी हो गया. चलो नेक्स्ट फोर्स इज दिस वन HA. HA is making a clockwise movement, so it will be minus. So I will write minus of HA into. ठीक है. Now my force is horizontal, तो डिस्टेंस कौन सा लगेगा? Vertical. I need vertical distance. That means this particular distance. Well, कितना हो जाएगा वो? Just complete the triangle. This I have completed the triangle. Now in this entire triangle, ये पूरा जो triangle है, इसके अंदर total length अपनी 12 है. So this distance will become 12 cos 60, and this entire distance will become 12 sin 60 by shortcut method. So now here HA will be HA multiplied by 12 sin 60. So next force 0.3 HA. This is also making a clockwise movement, so it will be minus. So I will write minus of 0.3 HA multiplied by distance कितना हो जाएगा? Force is vertical, तो distance हमको चाहिए horizontal. Just look at the figure. Horizontal distance of 0.3 HA. It's already mentioned in the diagram. 12 cos 60. Yes, it will be 12 cos 60. Okay, everything is done now, so this should be equal to 0. Observe equation number 1 and 2. How many unknowns are there? Equation 1 and 2. Here it is HA and VB. Here also it is HA and VB. Two equations, two unknowns. So solve equation 1 and 2 simultaneously. चलो कैलसी में करो फटाफट and give me the answers for HA and VB. 325.5. किसका आंसर, HA का कि VB का? और अगर HA मिल गया तो VB भी आ जाना चाहिए साथ में. VB का आंसर क्या है?
1302.30. 13 02. 1302 point 32. ओके ओके एनीथिंग डेसिमल के बाद जो आ रहा है वो लिखो. सो वी नाउ गॉट आंसर फॉर एच ए एंड वी बी. पुट दिस वैल्यूज ऑफ एच ए एंड वी बी इन इक्वेशन नंबर 3. सो आई विल राइट इट हियर. पुट एच ए एंड वी बी इन 3. सो एच ए हमको मालूम है. आई एम नोन विथ एच ए. एच ए यहाँ पर भी ये भी मालूम है. ठीक है, तो सिर्फ एच ए पुट करेंगे तो यू विल गेट द आंसर फॉर एक्स. 5.24 meter. 5.24. 24. So 5.24 meters is x. अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था. हाउ मच हाई ही विल बी एबल टू गो बिफोर द लेडर स्लिप्स. तो आंसर विल बी ही विल बी एबल टू गो 5.24 मीटर्स. 5.24 के ऊपर थोड़ा भी गया तो ये सीढ़ी गिर जाएगी. इसका मतलब ये होता है. लेट मी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question says a 150 Newton uniform ladder 4 meter long supports a 500 Newton weight at its top. ये important part है, top पे है. Assuming the wall to be smooth, important, very important line. Assuming the wall to be smooth, find the minimum coefficient of friction which is required at the bottom rough surface to prevent ladder from slipping. So again, as I can see from the diagram, it is a problem of ladder friction. So I will start with the free body diagram. First of all, we show the applied forces. इसके अंदर कोई applied force क्वेश्चन में नहीं दिया है. So let us skip that part. Second part, self weight. Self weight always act vertically downwards and at the center of the body. So from the total line is 4 meter. So I will make a vertical force of 500 Newton. No, sorry. 150 Newton. 150 Newton दिया है weight of ladder and it will act at a distance of exactly half, that is 2 meter from both the sides. Okay. Applied force हो गया, self weight हो गया. बट सेल्फ वेट हमने सिर्फ किसका लिया अभी? हमने सेल्फ वेट लिए सिर्फ ladder का. क्वेश्चन में हमको ये भी बोला है देयर इज अ वेट ऑफ मैन विच इज एग्जैक्टली एट द टॉप. यहाँ पर एकदम टॉप पे एक मैन खड़ा हुआ है तो उसका वेट भी यहाँ से आपको वर्टिकली डाउनवर्ड दिखाना है एंड द वेट विल बी 500 न्यूटन. ठीक है. सो अप्लाइड फोर्स हो गया, सेल्फ वेट हो गया. उसके बाद क्या बचा? नेक्स्ट क्या दिखाएंगे हम लोग? Normal reaction. Yes, reaction from contact surfaces. So if I observe the diagram on the right hand side, there are two contacts. One is contact at A and one is contact at B. So there are two contacts, so there will be two contact reactions and reactions are always perpendicular to the surface and from surface to the body. So if I come at point A, I will make one perpendicular reaction at A. Direction will be from surface to the body and let me name it as VA. Similarly, at point B, there will be one reaction like this. Its name will be HB. Horizontal reaction at B because surface is vertical. Okay, so this is the third point. Fourth point we show as the friction force. Friction force should be shown always opposite to the motion of the body and the value will be mu multiplied by N. So at point A, this will be mu multiplied by VA and this will come down. So here it will be vertical force of mu multiplied by HB. Am I correct or am I wrong? There is some mistake. क्वेश्चन बराबर से पढ़ो जो मैंने हाईलाइट किया हूँ. मैं बोला था वो इम्पोर्टेंट है. स्मूथ सरफेस है सर. यहाँ पर देखो क्या लिखा है. Assume wall to be smooth. अगर वॉल स्मूथ है तो वहाँ फ्रिक्शन आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा. अगर फ्रिक्शन नहीं आएगा सो यू डोंट हैव टू मेक दिस पर्टिकुलर फोर्स. ये म्यू इंटू एच बी नहीं आएगा वहाँ पर. नॉर्मल केस में हम लोग बनाते हैं बट यहाँ पर नहीं आएगा बिकॉज इट इज रिटन दैट वॉल टू बी स्मूथ. वॉल टू बी स्मूथ मतलब फ्रिक्शन जीरो हो गया, म्यू जीरो हो गया मतलब वो फोर्स हट गया. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. चलो तो अभी तो और कुछ बचा नहीं. सो नाउ वी कैन अप्लाई द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. So first condition I will apply, summation of fx should be 0. Add all the forces in x direction. तो x में एक तो मेरा mu into va आ रहा है, then we have minus hb और कोई फोर्स तो नहीं दिख रहा है मुझे x में. So this should be equal to 0. Let this be equation number
1. Then second we write summation of Fy should be 0. Add all the forces in y direction. तो y में एक Va ऊपर जाता हुआ, so it is Va. Then minus 150 minus 500 और कौन सा बच गया, बस इतना ही है ना. ओके, सो देर इज नो मोर फोर्स इन वाई डायरेक्शन, सो दिस शुड बी इक्वल टू 0. तो यहाँ पर मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि देर इज ओनली वन अननोन इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, एक ही अननोन है. सो आई विल राइट वी ए इज इक्वल टू 500 प्लस 150 दैट इज 650 न्यूटन. यहाँ से डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा. वी ए इज इक्वल टू 650 न्यूटन बिकॉज देर वॉज ओनली वन अननोन. नाउ थर्ड इक्वेशन वेयर द स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक. हमेशा मैं बोलता हूँ फ्रिक्शन में मूवमेंट में लेने में इशू आता है. इशू नहीं आता है, लोग लॉन्ग कर देते. लेट अस से मूवमेंट एट ए, आई एम राइटिंग मूवमेंट एट ए इज इक्वल टू 0. चलो मूवमेंट कहाँ से लेंगे, मूवमेंट एट ए ले रहे हैं हम लोग. ठीक है, सो वी ए और म्यू इंटू वी ए का तो मूवमेंट 0 हो गया. नाउ इफ आई कंसिडर दिस 150 न्यूटन फोर्स, दिस इज मेकिंग अ क्लॉकवाइज मूवमेंट. सॉरी, हाँ या क्लॉकवाइज मूवमेंट. सो इट विल बी माइनस ऑफ 150 इंटू, नाउ आई नीड डिस्टेंस फ्रॉम योर साइड. डिस्टेंस कितना लिखूँ? 2 cos 60. देखो किसी ने तो 2 बोला, हाँ ठीक है बराबर. किसी ने तो 2 बोला, वो 2 गलत है बिकॉज दैट 2 इज द इंक्लाइंड डिस्टेंस. अगर आप यहाँ देखोगे 2 इज द इंक्लाइंड डिस्टेंस, इट इज नॉट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. और मैं आप लोग को एक रूल सिंपल से रूल बताया हूँ, अगर हमारा फोर्स वर्टिकल है तो आपको चाहिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. मतलब आई नीड दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस, ये वाला जो मैंने अभी डार्क किया. तो ये कैसे मिलेगा उसका भी शॉर्टकट बता दिया. एंगल 60 दिया है तो यहाँ पर तो cos 60 आएगा, एंड यहाँ पर अपने को हाइपोटेन्यूज 2 दिया है तो दिस विल बी 2 cos 60. सो हियर इट विल बी रिटन 2 cos 60. नाउ सिमिलरली फॉर 500 न्यूटन फोर्स, दिस इज ऑल्सो मेकिंग अ क्लॉकवाइज मूवमेंट, सो इट विल बी माइनस. सो आई विल राइट माइनस हियर, माइनस ऑफ 500 इंटू. चलो अभी आंसर बताओ क्या आएगा. अगेन माई फोर्स इज वर्टिकल तो मेरे को डिस्टेंस लगेगा हॉरिजॉन्टल. सो लेट मी मेक द ट्राइंगल फर्स्ट. अब मुझे चाहिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इतना. कितना हो जाएगा ये? 4 cos 60. करेक्ट, इट विल बी 4 cos 60. किसी को डाउट है इसमें 4 cos 60 पे? नहीं. मल्टीप्लाइड बाई 4 cos 60. देन दिस HB जो है वो अपना हॉरिजॉन्टल फोर्स है. ये HB जो है अपना हॉरिजॉन्टल फोर्स है, मेकिंग अ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, सो इट विल बी पॉजिटिव. आई विल राइट प्लस HB इंटू, ठीक है, HB इंटू. अब डिस्टेंस बताओ. फोर्स इज हॉरिजॉन्टल तो आई नीड दिस वर्टिकल डिस्टेंस. 4 sin 60. करेक्ट, हमने यहाँ पर बोल दिया था ये 4 cos 60 है तो ये बचा हुआ रहेगा 4 sin 60. सो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 4 sin 60. और कोई फोर्स बचा नहीं तो दिस शुड बी इक्वल टू 0. नाउ इन दिस इक्वेशन द अननोन इज HB. तो कैल्सी में डाल के सॉल्व करो एंड गेट द आंसर फॉर HB 331.97. ओके, सो आई गॉट द आंसर फॉर HB, आई गॉट द आंसर फॉर VA. Put VA and HB, put VA and HB in equation 1 and get the answer for mu. 0.51 है सर. Okay, 0.51 is correct. So let us start with the free body diagram. Free body diagram कैसे बनाएंगे, important part इसके अंदर ये है, free body diagram. ठीक है, then ladder points are, एक पॉइंट है A, दूसरी पॉइंट है C और एक पॉइंट है तुम्हारी B. ध्यान देना यहाँ पर A, C और B. और आपको डिस्टेंस, चलो पहले तो थोड़ा हम लोग ये निकाल लेते हैं. यहाँ पर हमको दिया है द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम B to C इज 1.75, ये दे दिया है. बट हमको ये नहीं दिया कि ये B से C इंक्लाइन डिस्टेंस, ये CD का डिस्टेंस कितना है. बट कैन वी फाइंड इट आउट, हम निकाल सकते हैं क्या ये? Yes. So I will write from this diagram only, I will write sin 45 sin theta is opposite, that is 1.75 divided by hypotenuse, let us say I am writing as BC. So from here I will get BC is equal to 1.75 divided by sin 45. So what answer I should get here? 2.47.
मीटर्स। ओके, तो ये आंसर हमको मिल गया। जो अभी तक हमको क्वेश्चन में दिया रहता था कि लैडर का लेंथ ये है, यहाँ पर नहीं दिया था, तो हमने बाय यूजिंग बेसिक रूल्स हमने फाइंड कर लिया दैट इट इज 2.47 मीटर्स। चलो आगे, नंबर लेके जाओ। चलो स्टार्टिंग विद द फ्री बॉडी डायग्राम। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं अप्लाइड फोर्स, जो कि इसमें है नहीं। उसके बाद हम लोग बनाते हैं सेल्फ वेट। ठीक है, सेल्फ वेट। टोटल लेंथ ऑफ रॉड ए बी इज 3.5, टोटल 3.5 दे दिया है। टोटल यहाँ से यहाँ तक इट इज 3.5। ठीक है, सेल्फ वेट ऑलवेज एक्ट, कहाँ पर एक्ट करता है सेल्फ वेट? ऑलवेज एक्ट एट द सेंटर एंड वर्टिकली डाउनवर्ड्स। So I will make somewhere here a force of 250 Newton exactly at a distance of half of 3.5 which is 1.75. यहाँ से भी 1.75 होगा, वो यहाँ से भी 1.75 होगा। ठीक है, अप्लाइड फोर्स हो गया, सेल्फ वेट हो गया। उसके बाद रिएक्शंस फ्रॉम कॉन्टैक्ट सरफेसेस। ना यहाँ पर आपका अटेंशन चाहिए। रिएक्शन फ्रॉम कॉन्टैक्ट सरफेसेस। अब कॉन्टैक्ट सरफेस यहाँ पर ये है, एक तो ये सी वाला और एक ये बी वाला। ठीक है, बी का तो कोई इशू नहीं है, द सरफेस इज हॉरिजॉन्टल, तो हमको मालूम है रिएक्शन विल कम एज वर्टिकल, तो मैं पहले वो बना देता हूँ, वर्टिकल एट पॉइंट बी, बी बी। नाउ रिगार्डिंग दिस पॉइंट सी, ये कॉन्टैक्ट जो है इट इज़ अ पॉइंट कॉन्टैक्ट, ना तो हॉरिजॉन्टल है ना तो वर्टिकल, इट इज़ अ पॉइंट कॉन्टैक्ट। बट वी नो द कॉन्सेप्ट, रिएक्शंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब मेरा रिएक्शन कुछ इस तरीके का आना चाहिए, सच दैट इट बिकम्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहाँ पर भी मैं सिमिलर बनाता हूँ, सो इट विल बी लाइक दिस। लेट अस से दिस इज आर सी, अब नाम कुछ भी दे सकते हैं हम लोग, आर सी। इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, अप्लाइड फोर्स हो गया, सेल्फ वेट हो गया, रिएक्शन फ्रॉम कॉन्टैक्ट सरफेस हो गया। लास्ट में हम लोग बनाते हैं फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अगेन इफ यू लुक एट अ डायग्राम ऑन द राइट हैंड साइड, बी कहाँ जाने की कोशिश करेगा? राइट साइड। सो फ्रिक्शन फोर्स विल कम टुवर्ड्स लेफ्ट साइड एंड आई विल राइट म्यू, म्यू तो दिया नहीं है, तो इट विल बी म्यू मल्टीप्लाइड बाई वी बी, म्यू इंटू वी बी। सिमिलरली जैसे ही बी राइट साइड जाएगा, सी नीचे आने की कोशिश करेगा, सी नीचे आने की कोशिश करेगा, तो देयर विल बी वन फोर्स विच इज गोइंग अपवर्ड। एक अपवर्ड फोर्स मुझे बताना पड़ेगा, एक अपवर्ड फोर्स, दिस ब्लू कलर। ओके, सो एक अपवर्ड फोर्स मैं बताऊंगा यहाँ पर, एंड दिस आई विल राइट एज म्यू इंटू म्यू मल्टीप्लाइड बाय आर सी। दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स। किसी को डाउट है इसमें यहाँ तक? सो द डिफरेंस बिटवीन द अदर प्रॉब्लम्स एंड दिस प्रॉब्लम इज एट पॉइंट सी। यहाँ पर एट पॉइंट सी जो है हमारा पॉइंट कॉन्टैक्ट, एक पॉइंट कॉन्टैक्ट है, इट इज नाइदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल। तो बट हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था पहले से कि रिएक्शंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहाँ पर भी मैंने एक आर सी बना दिया जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स अवर फ्री बॉडी डायग्राम। नाउ व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? कैन वी स्टार्ट द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग कि कुछ करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। It should be resolved because if you observe, yes, if you observe the directions of RC and mu RC, जो मैंने ब्लू में और रेड में बनाया वो दोनों क्या है? सो इंक्लाइन फोर्सेस शुड बी रिजॉल्व। तो यहाँ पर मैं एक रेजोल्यूशन करूँगा इस तरीके से। ओके, एंड दिस विल बी डन लाइक दिस। नाउ रिगार्डिंग एंगल, क्वेश्चन में हमको दिया है कि ये एंगल 45 है। जस्ट ऑब्जर्व, ये एंगल 45 आपको दिया है। चलो राइट साइड वाले डायग्राम पे आ जाओ, मेन क्वेश्चन पे। देखो ये एंगल हमको दे दिया है 45 है। ये एंगल जब 45 है, ये 90 है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? दिस विल ऑल्सो बी 45. So because of that I can write this angle as 45. So I will write RC cos 45 and here I will write RC sin 45. Now similarly mu RC जो है, mu RC भी हमारा inclined force है। So mu RC को भी resolve करना पड़ेगा। So one will go this side and one will go this side. So this will become mu RC, एंगल ये 45 हो जाएगा। सो दिस विल बी म्यू आर सी साइन 45 एंड दिस विल बी म्यू, इसको थोड़ा और आगे खींच लेता हूँ, इट विल बी म्यू आर सी कॉस 45. So now our free body diagram is ready to be applied for conditions of equilibrium. So first condition I will write,
summation of fx should be 0, okay, plus r mu cos r 45, cos then minus mu rc, एक्चुअली rc है, r नहीं है वो, rc cos 45 और कुछ, I think all the x-axis forces are taken, yes, is equal to 0. Let this be equation number 1. यहाँ से अपने कोई आंसर नहीं मिल रहा है, इक्वेशन बना के छोड़ दो. Let us go to the equation number 2. Equation number 2 is summation of fy is equal to 0. देखो मैं कुछ नया चेंज नहीं कर रहा हूँ अभी, जैसे हम लोग नॉर्मल करते थे वही कर रहा हूँ. Summation of fy should be 0. Add all the forces in y direction. चलो y में क्या क्या आएगा, एक तो vb आ जाएगा, पॉजिटिव अपवर्ड जा रहा है, -250 yes, plus rc sin 45 and then plus mu rc sin 45 और कुछ बचा no sir नहीं बचा है, तो दिस शुड बी इक्वल टू 0. अगेन लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2. अब मेरे को तुम्हारा अटेंशन चाहिए थर्ड पार्ट के लिए, इंपॉर्टेंट पार्ट के लिए. थर्ड पार्ट इज summation of movement should be 0. तो लेट अस से आई एम टेकिंग मूवमेंट एट पॉइंट बी, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल मजा आएगा, कॉन्सेप्ट्स याद रखेंगे तो होगा सब इसमें. मूवमेंट एट बी लिया, मूवमेंट एट बी जब ले रहा हूँ तो टेल मी विच ऑफ द फोर्सेस मूवमेंट विल बिकम 0. किसका किसका 0 होगा, सोच के बता. mu VB और म्यू VB का. वीबी का और म्यू वीबी का, ये तो तुमको दिख रहा है, और क्या हो सकता है, थोड़ा सा लॉजिकली सोचो. तो मैं एक बार फ्री बॉडी डायग्राम फिर से बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर नीचे, ठीक है. तो फ्री बॉडी डायग्राम में हमारा क्या था, एक तो ये था आर सी, दिस वाज आर सी, देन एक मैंने लिया था सेल्फ वेट, यहाँ पर मैं देता हूँ सेल्फ वेट ऑफ 250 न्यूटन, ठीक है. उसके बाद हमने बोले थे यहाँ पर ये है म्यू आर सी, म्यू इंटू आर सी. उसके बाद में यहाँ पर एक है वी बी और यहाँ पर है म्यू वी बी, ठीक है. ये अपना एक्चुअल फ्री बॉडी डायग्राम था बिफोर रेजोल्यूशन करने से पहले, ठीक है. अब मुझे बताओ, व्हेन आई टेक मूवमेंट, बहुत सोच समझ के, व्हेन आई टेक मूवमेंट अबाउट दिस पॉइंट, कौन से फोर्स का मूवमेंट 0 हो जाएगा, ये अपना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. म्यू वी बी और वी बी तो होगा, म्यू वी बी और वी बी तो होगा. व्हाट कैन यू टेल अबाउट म्यू आर सी, म्यू आर सी का मूवमेंट क्या होगा. यस, म्यू आर सी 0. योर आंसर इज करेक्ट, बट क्यों, व्हाट इज द जस्टिफिकेशन. योर आंसर इज परफेक्टली करेक्ट. हमने मूवमेंट में क्या बोला था, जो फोर्स उसी पॉइंट से पास होगा उसका मूवमेंट 0 होगा. तो म्यू आर सी, एक्चुअली तो पॉइंट सी इधर ही है, एक्चुअली ये पॉइंट सी है, ये वाला, ये पॉइंट सी है, और म्यू आर सी एक्चुअली कहाँ पर है, वो यहाँ पे है, म्यू आर सी. और इफ़ यू सी, अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊँ, और ये मेरा ब्लैक वाला जो कर्सर नीचे जा रहा है, वो कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, it is passing through B only. That's why the movement of mu RC is also equal to 0. तो अब मूवमेंट किसका आएगा, एक तो इसका आएगा RC का, और एक आएगा ये 250 वाले न्यूटन का. चलो, सो टेल मी द मूवमेंट क्या आएगा. 250 वाले का आंसर बताओ, अब तो तुम लोग स्मार्ट हो गए. 250 वाले का क्या आएगा मूवमेंट, इट इज मेकिंग अ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, सो इट विल बी पॉजिटिव. सो आंसर आई विल राइट 250 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, क्या लूंगा, फोर्स इज वर्टिकल, तो डिस्टेंस शुड बी हॉरिजॉन्टल, और आपको ये 1.75 दिया है. 1.75 cos 45. करेक्ट, इट विल बी 1.75 cos 45, 1.75 cos 45. दूसरा फोर्स जो है हमारा आर सी, दिस आर सी इज मेकिंग अ क्लॉकवाइज मूवमेंट, सो इट विल बी पॉजिटिव. आर सी इंटू डिस्टेंस कैसे करोगे, आर सी का डिस्टेंस क्या आएगा, सोचो थोड़ा सा. हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं, मूवमेंट इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. डायग्राम में देखो, डायग्राम में कुछ तो परपेंडिकुलर बना हुआ है, 3.5. 3.5 नो, थोड़ा सा गलत बोल दिया. 3.5 तो ए तक चले गया, अपने को सी तक चाहिए ना. आर सी इज एट पॉइंट सी. 1.75 तो वेट जहाँ पर है वहाँ तक है. डायग्राम देखो, उसने बोला डायग्राम में 2.47. यस, इट विल बी 2.47. ठीक है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अपने को दिया है क्वेश्चन में, हमने निकाले स्टार्ट में ही कि दिस डिस्टेंस इज 2.47, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है. हमने खुद बोला था दिस
इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। तो हमको डायरेक्टली परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम है 2.47। इसके अंदर आपको कोई रेजोल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है फॉर मूवमेंट। व्हेन वी डू द मूवमेंट रेजोल्यूशन को भूल जाओ। सो हियर इट विल बी 2.47। दिस शुड बी इक्वल टू 0। बस दैट्स इट। काफ़ी सिंपल सा इक्वेशन बनेगा। दो ही मूवमेंट, बाकी सब जीरो हो जा रहे हैं। सो फ्रॉम हियर इफ यू ऑब्जर्व देयर इज ओनली वन अननोन, दैट इज आर सी। तो आर सी का वैल्यू निकाल लो और मुझे बताओ क्या आएगा। 125.2। 125.2 आर सी मिल गया। तो आर सी आपका कहाँ कहाँ पर है? यहाँ पे भी है इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है इक्वेशन 2 में, और यहाँ पे भी है। तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ आर सी। सो आई विल गेट माइनस म्यू इंटू वी बी प्लस आर सी की जगह पे आ जाएगा 125.2 कॉस 45 माइनस म्यू इंटू 125.2 cos 45। दिस शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, जो जो आंसर निकल सकते हैं मल्टीप्लाई करके निकाल लो। ये दो टर्म है, म्यू वी बी और ये म्यू इंटू 125.2 cos 45। इसमें से अगर मैं म्यू कॉमन निकालता हूँ, सो आई विल गेट म्यू कॉमन, अंदर बचेगा, ठीक है, माइनस म्यू कॉमन निकाल लेते। माइनस म्यू कॉमन निकाल तो मुझे मिलेगा वी बी और प्लस 125.2 cos 45। इसका आंसर कितना आ रहा है? जस्ट टेल मी द आंसर फॉर दिस। 125.2 cos 45 88.5। 88.5। ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू, ये पूरा टर्म जो है वो वहाँ चले जाएगा, 125.2 cos 45। सो आई थिंक इट विल बिकम माइनस 88.5। करेक्ट। तो माइनस एंड माइनस विल कैंसल फ्रॉम बोथ साइड एंड आई विल गेट वन इक्वेशन वी बी प्लस 88.5 into mu should be equal to 88.5. Let this be equation number 3. ठीक है, आई एम जस्ट डूइंग द मैथमेटिकल ट्रिक्स। क्या किया? कुछ भी नहीं, खाली कॉमन निकाला दोनों में से और जो आंसर आया वो लिख दिया। सर आरसी नेगेटिव आएगा ना? कहाँ पे? ये बी का मोमेंट निकाले तो उसमें बी का मोमेंट, इट इज गोइंग क्लॉकवाइज। हाँ, आर सी इज गोइंग क्लॉकवाइज, सो इट विल बी नेगेटिव। करेक्ट। दिस विल बी माइनस, क्योंकि अगर मैं देख रहा हूँ सो इट इज मेकिंग अ क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट आर टेकन एज माइनस, तो ये वहाँ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। करेक्ट। सो आर सी इज 125.2 करेक्ट दिख रहा है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमने सॉल्व कर लिया बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ आर सी। अब वैसे ही इसको भी सॉल्व कर लेंगे, सेकंड इक्वेशन को। सो व्हाट आई विल गेट इज वी बी इज इक्वल टू वी बी माइनस 250 प्लस आर सी की जगह पे आ जाएगा 125.2 साइन 45 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस म्यू इंटू 125.2 साइन 45 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं ऐसे कुछ लिख सकता हूँ, वी बी इज इक्वल टू इसका आंसर तो हम लोग निकाल सकते हैं, ये पूरे का आंसर निकाल के बताओ कितना आ रहा है? 160.5। 160.5। ठीक है, फिर ये वाला टर्म भी वहाँ जाएगा तो इट विल बी माइनस ये देखो कितना आता है, 125.2 साइन 45 कितना आ रहा है? 88.5 टाइम्स म्यू। ठीक है, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 4। अब देखो अपने पास दो इक्वेशन जो नवे आए, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। हमको वी बी का आंसर मिला इन टर्म्स ऑफ म्यू, तो अपन पुट कर लेते। अपन लिखेंगे पुट 4 इन 3 म्यू ऐसे ही। ठीक है, वी बी की जगह पे मैं लिखूंगा ये 160.5 माइनस 88.5 म्यू। ठीक है, देन प्लस 88.5 इज इक्वल टू 88.5। नाउ व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? ये पूरे इक्वेशन में कितने अननोन है? Only one unknown. Put in your calculus and get the answer. 1.81. Someone told the answer 1.81. तो जिसने भी 1.81 बोला, can coefficient of friction be more than 1? पॉसिबल है क्या? No sir. नहीं हो सकता। नहीं। ठीक है, तो आंसर विल बी 0. जो भी किसने दूसरा कोई आंसर बोले थे, किसी ने 0.4। 0.41।
0.41 that I can assume to be correct, but 0.414. Okay, so this completes the problem. Question में यही पूछा था, what is the minimum value of coefficient of friction to maintain the position shown? Let us go to the next question and the last question for this topic, I think friction. उसके बाद कोई दूसरा topic चालू होगा. Yes. So this type of question is nothing but the wedge friction. ठीक है, wedge. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपको बॉडीज वहां पर कितनी दिख रही है? चलो पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं. टू रेज अ हेवी ब्लॉक ऑफ 2000 न्यूटन, the arrangement shown is used. What horizontal force P is necessary to applied in order to raise the block? ये भी important चीज है. In order to raise the block. If mu is equal to 0.25, neglect the weight of the wedges. ठीक है, यहाँ पर अपने पास दो बॉडीज है, बॉडी A और बॉडी B. तो ठीक है, मैंने एक साइड में बना लेता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम के लिए. तो दिस लेट अस आई एम मेकिंग बॉडी B फर्स्ट. समथिंग लाइक दिस. बहुत ध्यान से देखना, वेज का आप लोग कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे अगर ये आप लोग समझ गए तो. दिस इज बॉडी B एंड लेट अस से आई एम मेकिंग बॉडी A हियर. दिस इज बॉडी A. चलो स्टार्ट करते हैं. लेट अस स्टार्ट विथ बॉडी A का फ्री बॉडी डायग्राम. फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉडी A. चलो सबसे पहले क्या बनाऊं बॉडी A पे? नॉर्मल रिएक्शन. सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन तो तीसरे स्टेप पे कूद गए थे. सबसे पहला क्या बनाते हम? गिवन फोर्सेस. गिवन फोर्सेस. तो A पे कोई गिवन फोर्स है? नहीं. एक पीक. अरे ये दिया है ना क्वेश्चन में, डायग्राम में देखो, ये दिया है ना हाँ, पीक अप्लाइड फोर्स. हाँ. सो एक अप्लाइड फोर्स हो गया P. उसके बाद सेल्फ वेट. क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, निग्लेक्ट द वेट ऑफ द वेजेस. मतलब सेल्फ वेट को अपने को निग्लेक्ट करना है, भूल जाओ. उसके बाद हम लोग बोलते हैं रिएक्शन फ्रॉम कॉन्टेक्ट सरफेसेस. अब मेरे को बताओ कितने कॉन्टेक्ट सरफेस है A के? 2. दो कॉन्टैक्ट है. ठीक है, एक कॉन्टैक्ट ये वाला है रेड में जो मैं मार्क किया, और दूसरा कॉन्टैक्ट ये वाला है. एंड वी ऑल नो दैट रिएक्शंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड फ्रॉम सरफेस टू द बॉडी. तो एक ये मैं बनाऊंगा ये वाला एंड आई विल नेम इट एज N1, और दूसरा मैं बनाऊंगा रिएक्शंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर. आई विल नेम दिस एज N2. किसी को डाउट है क्या इस पे? फ्रॉम सरफेस टू द बॉडी. किसी को भी डाउट? क्योंकि इसी के ऊपर मैं अभी आगे शॉर्टकट बताऊंगा. किसी को डाउट है? नो सर. ठीक है, सो वी मेड अप्लाइड फोर्स, वी मेड रिएक्शन फ्रॉम कॉन्टैक्ट सरफेस. नेक्स्ट फोर्स कौन सा बचेगा? फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शन फोर्स. करेक्ट. तो फ्रिक्शन फोर्स के लिए समझ में आ रहा है. देखो जब मैं P को धक्का मारूंगा, P का फोर्स लेफ्ट साइड जा रहा है, तो ब्लॉक A भी कहाँ जाएगा? यस, जब P अप्लाई होगा तो ब्लॉक A कहाँ जाएगा? लेफ्ट साइड. Block A will go towards left side. So if the block A is going towards left side, my friction force will go towards right side. So here I will write it with 0.25 into N1. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी फ्रिक्शन फोर्स आएगा इस तरीके से 0.25 N1. किसी को डाउट? नो सर. चलो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉडी A. अब आ जाओ बॉडी B पे. बॉडी B सबसे पहले अप्लाइड फोर्स है कुछ? 2000 न्यूटन. 2000 क्वेश्चन में दिया है. देयर इज अ फोर्स व्हिच इज अप्लाइड फ्रॉम टॉप एंड दिस इज 2000 न्यूटन. उसके बाद हम लोग बोलेंगे सेल्फ वेट. क्वेश्चन में बोल दिया निग्लेक्ट सेल्फ वेट, तो हम लोग निग्लेक्ट कर दिए. थर्ड, रिएक्शन फ्रॉम कॉन्टेक्ट सरफेसेस. अब मुझे बताओ B के कॉन्टेक्ट कितने हैं? 2. B के कॉन्टैक्ट भी 2 है. एक इधर है ये ब्लू वाला, और दूसरा ये है जो कॉमन कॉन्टैक्ट है. ठीक है, जो पहले का भी था. सो इफ देयर आर 2 कॉन्टैक्ट्स देयर विल बी 2 कॉन्टैक्ट रिएक्शन. ठीक है. सो एंड वी नो दैट रिएक्शन फ्रॉम कॉन्टैक्ट सरफेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड फ्रॉम सरफेस टू द बॉडी. तो यहाँ पर एक रिएक्शन आएगा इस तरीके से
एंड लेट अस से आई विल नेम इट एज लेट अस से N3, क्योंकि N1 N2 हमने यूज़ कर लिए। और ये वाला जो रिएक्शन है दिस विल बी फ्रॉम सरफेस टू द बॉडी, फ्रॉम सरफेस टू द बॉडी, एंड बिकॉज इट इज़ अ कॉमन सरफेस, ये कॉमन सरफेस है दोनों के लिए, तो रिएक्शन भी कॉमन रहेगा। सो आई विल नेम इट एज N2, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा N2। चलो, अप्लाइड फोर्स हो गया, सेल्फ वेट हो गया, रिएक्शन फ्रॉम कॉन्टेक्ट सरफेस वो भी हो गया। चौथा है तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स। नाउ टेल मी, जब A लेफ्ट साइड जाएगा तो B कहाँ जाने वाला है? ऊपर। B जाएगा ऊपर। B अगर ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स जाएगा नीचे, तो फ्रिक्शन फोर्स विल कम डाउन एंड इट विल बी वैल्यू इज 0.25 इंटू N3, ठीक है। एक फ्रिक्शन फोर्स तो यहाँ आ गया और एक फ्रिक्शन फोर्स इधर आएगा विच इज गोइंग टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, 0.25 N2, यहाँ पर भी N2 आना चाहिए, मैंने ये मिस्टेक किया, दिस इज N2, ठीक है। अब मेरे को जो बात बताना है वो देखो, इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब शॉर्टकट। जब हमने सोच समझ के, जब हमने डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए बनाए थे, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए, लेट मी यूज दिस कलर, ओके, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए जब हमने बनाए तो ये हमने सोच समझ के बनाए थे डायरेक्शन। किसी को डाउट था इसके अंदर ये कैसे आया, ऊपर से नीचे और ऊपर कैसे गया? किसी को डाउट है? नहीं। ये हमने कॉन्सेप्ट से बना, ठीक है, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर था, हमने बना दिया। नाउ जस्ट ऑब्जर्व दिस एंड दिस, जस्ट ऑब्जर्व दिस पार्ट, ये वाला। व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? क्या दिख रहा है आपको? कुछ सिमिलरिटीज दिख रही है? Can you see any similarities between these two? Yes. क्या सिमिलरिटी है? राइट साइड जा रहा है। Force और normal reaction. Both the forces are equal and opposite in directions. Can you observe that? हाँ, Yes. ठीक है, तो एग्जाम में भी आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। एक ब्लॉक पे आपने सोच के बना दिया, ये हमने सोच के बनाए थे, ठीक है, ए पे सोच के बनाए थे, तो बी पे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आप जैसा है उसका उल्टा बना दो। यहाँ पर N2 नीचे जा रहा था, यहाँ N2 ऊपर जाएगा, यहाँ पर N2 ऊपर की तरफ जा रहा था, 0.25 N2 यहाँ पर नीचे की तरफ जाएगा। शॉर्टकट समझ में आया? अरे भाई साहब, शॉर्टकट समझ में आया? हाँ सर। चलो, अब आती है एंगल की बात। बस ये भी सीखो कैसे आएगा। एक बताऊंगा, सिर्फ एक एंगल बताऊंगा, बाकी सब शॉर्टकट से होगा, सिर्फ ओनली वन एंगल। चलो कैसे निकालेंगे? ये जो है बहुत ध्यान से देखना, एक एंगल आपका, चारों एंगल इजीली निकल जाएगा एक एंगल की वजह से। आपका ये जो N2 है, ये N2 इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल ऐसी है, यही डायरेक्शन में है, ऑब्जर्व हो रहा है। ये 0.25 जो N2 है ये वाला, इज इट इन द सेम पैरेलल डायरेक्शन? ये और ये दोनों सेम है, सेम डायरेक्शन में, यस और नो? यस सर। यस सर। तो अगर इसका एंगल 15 अपने क्वेश्चन में दिया है, अगर एंगल 15 क्वेश्चन में दिया, मतलब इसका एंगल भी कितना होगा? ये 15 ही होगा। और अगर ये 15 है, सो दिस विल बिकम 0.25 N2 cos 15 and this component will become 0.25 N2 sin 15। किसी को डाउट? सर अब यहाँ पर ये N2 भी इंक्लाइंड है, तो इसको भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। सो दिस विल बी रिजॉल्व लाइक दिस, ठीक है। अब आप फिर से बोलोगे सर एंगल कैसे निकालेंगे? तो मैं क्या बोला था, एक एंगल बताऊंगा, बाकी सब शॉर्टकट से। यहाँ पर हमने एंगल विथ रिस्पेक्ट टू क्या निकाला? कौन से एक्सिस से बताया? X axis. एक्स एक्सिस से। तो अगर ये वाला फोर्स एक्स एक्सिस से है, तो दूसरा जो बचा हुआ फोर्स होगा वो कहां से होगा? ये एंगल एक्स एक्सिस से, तो ये वाई से होगा। क्यों वाई से होगा? बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हम खुद ही बोले थे रिएक्शंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो सिंपल, और अगर टेक्निकल आपको याद नहीं रखना, सिंपल याद रखो, अगर ये एक्स से बन रहा है तो ये वाई से बनेगा।
सो दिस इज 15 ना, और ये 15 है तो ये हो जाएगा n2 cos 15 और ये हो जाएगा n2 sin 15। किसी को डाउट है? नो सर। चलो ये बना लिए, तो अब यहाँ का सोचने की जरूरत नहीं है, बी का सोचने की जरूरत है, क्योंकि हमने अभी क्या डिस्कस किए, इट इज इक्वल एंड अपोजिट। तो जो चीज़ वहाँ है वो चीज़ यही है, सेम चीज़। तो यहाँ पर देखो n2 जो है, n2 क्या था, n2 sin 15, n2 cos 15। तो सेम चीज़ मैं यहाँ बताऊँगा, दिस इज n2 cos n2 sin 15 एंड दिस इज n2 cos 15। जैसा वहाँ पर है वैसे ही दिखाना है, खाली उल्टा। सिमिलरली सेकंड वाले का ये आ जाएगा दिस एंड दिस। तो वर्टिकल वाला वहाँ पर sin 15 था, तो यहाँ भी sin 15 होगा 0.25 n2 sin 15 एंड दिस इज 0.25 n2 cos 15। नाउ अवर फ्री बॉडी डायग्राम इज रेडी टू बी अप्लाइड फॉर कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो पहले अपन कंसिडर करते हैं फॉर ब्लॉक ए समेशन ऑफ fx शुड बी 0। चलो बताओ क्या क्या आएगा ब्लॉक ए के लिए। इट विल बी x में देखना है, तो इट विल बी -p देन प्लस 0.25 n2 cos 15 प्लस n2 sin 15 और कुछ बचा x में, आई थिंक नो। दिस शुड बी इक्वल टू 0, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिमिलरली आई विल राइट समेशन ऑफ fy शुड बी 0, एड ऑल द फोर्सेस इन y डायरेक्शन। तो y में अपने को एक n1 आ रहा है, n1 माइनस n2 cos 15, ठीक है, प्लस 0.25 n2 sin 15 और कुछ बचा 1 2 3, मेरे ख्याल से तीनों हो गए। दिस शुड बी इक्वल टू 0, लेट दिस बी इक्वेशन। हाँ बोलो सर x में 0.25 n1 नहीं लिखते? 0.25 n1 कहाँ पर है? हाँ वो भी आएगा, वो वो भी आएगा, करेक्ट। दिस ये भी आएगा प्लस 0.25 n1 इक्वल टू 0, करेक्ट। दिस इज इक्वेशन 2। Now what is my observation from these two equations? n1 भी अननोन है, n2 भी अननोन है, p भी अननोन है। 3 अननोन से और इक्वेशन 2 ही है, तो आंसर आना ही नहीं है, तो भूल जाओ, छोड़ दो उसको। 1 2 इक्वेशन बना के हमने छोड़ दिया। अब हम लोग लिखेंगे फॉर ब्लॉक बी। चलो फॉर ब्लॉक बी समेशन ऑफ fx शुड बी इक्वल टू 0। तो मैं क्या क्या लिखूंगा समेशन ऑफ fx इक्वल टू 0 के लिए फॉर ब्लॉक बी। x के लिए अपना आ जाएगा n2 sin 15 इन नेगेटिव बिकॉज इट इज गोइंग लेफ्ट साइड, प्लस n3 और कुछ आएगा, हाँ एक और आएगा, माइनस 0.25 n2 cos 15 और कुछ आएगा, n2 sin 15 हो गया, 0.25 n2 cos 15 हो गया, n3 हो गया, मेरे ख्याल से और कुछ नहीं। दिस शुड बी इक्वल टू 0, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3। चौथा समेशन ऑफ fy शुड बी 0, एड ऑल द फोर्सेस इन y डायरेक्शन। y डायरेक्शन में क्या क्या है, 2000 न्यूटन 2000 माइनस में जाएगा, तो माइनस 2000 और प्लस n3 प्लस n3 कैसा है, नहीं 0.25 n3 वो भी प्लस में नहीं माइनस आएगा, 0. हाँ माइनस माइनस 0.25 n3 माइनस 0.25 n3 और n2 cos 15 cos 15 कहाँ दिख रहा है, हाँ मेरे को दिख रहा है, प्लस n2 cos 15 और एक बच गया
0.25 into sin 15 minus 0.25 Minus में. into sin 50. sin 15. This should be equal to 0. Let this be equation number 4. Now what is your observation related to point 3 and point 4? मतलब equation 3 and equation 4. How many unknowns are there? देखो यहाँ पे n2 n3 n2, यहाँ पे भी तीन unknown है n3 पहले. n2 n2. कहाँ 3 unknown है? मेरे को तो 2 ही दिख रहे हैं. दो unknown है. n2 और n3 है ना वो. n2 और n3 हाँ. fx में है और n2 और n3 fy में भी है. So there are 2 equations and 2 unknowns. कैलसी में पुट करो और get with the values of n2 and n3. 2576.8 2576 और n3 1289.19 1289.19 newtons. So now you got the values of n2 and n3. n2 को इसमें पुट करो. Put n2 here. Put n2 here and here. तो यहाँ से आपको n1 मिल जाएगा. सर n1 2 3 2 1.4 2 3 1.4 231 खाली. नहीं 2321.4 ओके 2321.49 न्यूटन्स. और n1 को यहाँ पुट कर दो तो n2 मालूम है, n1 मालूम है, तो हमको यहाँ से p का आंसर मिल जाएगा जो रिक्वायर्ड है 1869.72. किसी ने डाला चैट बॉक्स में 1869.72. इज इट करेक्ट? 1869.72. आई थिंक इट इज करेक्ट. 1868 आ रहा है मेरा. हाँ उतना चलेगा यार. 1868 1869 इट इज ओके. 1869 पॉइंट समथिंग न्यूटन. ठीक है, कोई डाउट अभी? सो वी हैव कंप्लीटेड 4 क्वेश्चन मेरे पास आए थे फॉर फ्रिक्शन एंड वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 4.